और कश्मीर की बात आपने की है तो ऑब्वियसली नेहरू जी याद आ गए। आपने उन्हें आजाद भारत का, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी ने जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत का सबसे बड़ा डिक्टेटर बोला है। जबकि उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले उनको देश का सबसे विजनरी व्यक्ति मानते हैं और लिबरल मानते हैं। और मतलब डेमोक्रेसी बचाने वाला। तो कैसे, आपका क्या जस्टिफिकेशन है, क्या कारण है कि आपने उनको सबसे बड़ा डिक्टेटर बोल दिया? देखिए, जितना नेहरू जी ने स्टाइफल करी फ्री स्पीच, जितना उन्होंने बुक्स को बैन किया, जितना उन्होंने फिल्म्स को बैन किया, जितना उन्होंने ऐसे एक्ट्स लाए, प्रेस फ्रीडम को बैन किया अपनी विम्स और फैंसीज पे, अवे फ्रॉम इंदिरा गांधी जिन्होंने तो ब्लैंकेट बैन कर दिया था इमरजेंसी में। अगर आप इमरजेंसी हटा दें तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना नहीं किया। आई कैन गिव यू द इंस्टेंसेस, शैल आई गिव यू द इंस्टेंसेस अगर 2 मिनट है आपके पास, क्योंकि लोगों को फैक्ट्स चाहिए, वरना लोग कहेंगे ऐसे ये चाचा को गाली दे रहा है, शर्म नहीं आती इसको, महात्मा कम हो गए थे क्या? उनकी लिस्ट भी है मेरे पास, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। पर सर ये व्यंग कहाँ से आया, ये सटायर के लिए ये विट कहाँ से आया? पिताजी से या माताजी से? पिताजी माताजी नहीं, चाचा जी पे आते हैं। चाचा जी पे आते हैं। तो ये है, देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर पंडित जी, अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इंसाइटमेंट, डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये ले आए बीच में चाचा जी। 2 आवर फ्री स्पीच है। पोएट मजरू सुल्तानपुरी वाज जेल्ड फॉर 1 year फॉर कॉलिंग नेहरू हिटलर का चेला इन अ पोएम। First democratically elected communist government in Kerala was dismissed. Congress president said communist parties wouldn't be allowed to participate in general elections. Stanley Wolpert's book 9 Hours to Rama was banned. The book Chandra Mohini was banned. Audrey Menem's The Ramayana was banned. Campbell's The Heart of India was banned. Koestler's The Lotus and the Robot was banned. Import of any newspaper that undermined friendly relations with foreign states was banned. Aziz Beg's Captive Kashmir was banned. Freischler's Aisha was banned. Bertrand Russell's Unarmed Victory was banned. Robson's film 9 Hours to Rama was banned. Sardanvi's Marka-e Somnath was banned. Robert Taylor's The Dark Urge was banned. Selling Lady Chatelier's Lover was banned. The book What Has Religion Done for Mankind was banned. Rawat Wang's Bhupat Singh's was banned. Import of any quote-unquote obscene drawing or painting was banned. Mrinal Sen's film Neel Akshar Niche was banned. Menem's Rama Retold was banned. Tony Hagen's book Nepal was banned. The RSS's organizer was censored, its publishers prosecuted. Film Gokul Shankar was banned. Godse's testimony was banned. Goswami's film Runumi was banned. Historian Dharampal was jailed for criticizing Nehru post-Indo-China war. Release of the 1962 war film Bhool Na Jana was blocked. President Rajendra Prasad's speech was barred from distribution. Film Jharna was banned. Draconian Press Objectionable Act was passed. Columnist Vivek was fired. His column critical of Nehru discontinued. Hindustan Times editor Durga Das was fired. His column critical of the Nehru family discontinued. Congress leaders demanding Nehru's resignation were arrested and jailed. Ads to the Times of India were discontinued for speaking against government policy. Magazine Crossroad was banned. Play Nigalayane Communistike was banned. Its actors arrested. Hindi film songs were banned from being played in the All India Radio. Congress demanded a ban on the iconic film Parasakti. Film Nastik was banned. Western pop music was banned from the AIR. People's Theatre Association was banned. Play Harpida Master was banned. Film Ganga Jamna was blocked. Saras Chandra Chattopadhyay's play Mahesh was banned. Tagore's play Gora was banned. Balraj Sahni's play Jadoo Ki Kursi was banned. Tagore's play Visarjan was banned. Pradeep's film songs were deleted. 2 songs from Fir Subah Hogi were banned. Harmonium was banned from the AIR. Film Jugnu was banned. Editor Prahlad Keshav Atre was jailed for writing a critical article. ये सब लिबरल चचा जी ने किया है। अब वो डिक्टेटर थे कि नहीं थे, ये मैं आप पे छोड़। Why हारमोनियम? उनको अच्छा नहीं लगता था हारमोनियम, आवाज अच्छी नहीं थी, शायद उनको अपनी आवाज की याद दिलाते हो। ये है सिचुएशन। और यही नेहरू था जब हम ग्रोइंग अप, नेहरू चाचा हमारी डेमोक्रेसी बचाई। शंकर ने कार्टून बनाया और नेहरू ने कहा डोंट स्पेयर मी शंकर, ये कहते हैं ना लोग, ये असलियत है नेहरू। और ये नेहरू है, इंदिरा भी नहीं है। इंदिरा को तो आप
जब आप लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स वर ड्रैकोनियन एंड डिक्टेटर्स, दे ऑलवेज टॉक ऑफ इमरजेंसी, राइटली सो, बट नोबडी टॉक्स ऑफ दिस. एंड आई टेल यू हाउ दिस वाज सो मच मोर वर्स देन राजीव गांधी और मोदी और मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी, बिकॉज these were our foundation forefathers. They were supposed to protect liberalism and democracy. तभी जो सुप्रीम कोर्ट कहता है ना कि अगर किसी जज ने गलती करी है उसको ज्यादा सख्त सजा दो, बिकॉज जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन. जिनके हाथ में हमने धरोहर सौंपी है वही अगर ये सब करेंगे तो आने वाले लोग तो डेफिनेटली करेंगे, और किया उन्होंने. बट दिस इज द सिचुएशन. पर आनंद सर, आपने नेहरू और गांधी परिवार पर एक और बात कही थी जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी या राहुल जी, ये सारे लोग बाबर की मजार पर गए लेकिन इनमें से कोई भी राम जन्मभूमि नहीं गया. तो क्या ये कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कोई सोच आप देखते हैं? एक्चुअली इसमें सोच का तो कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इट टेल्स द साइकी ऑफ द पर्सन. लेकिन ये फैक्ट भी है कि जब पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब सोमनाथ का कॉन्सेक्रेशन होना था टेम्पल का, जैसे रामलला के टेम्पल का हुआ वैसे सोमनाथ का भी होना था, तो नेहरू काइंड ऑफ टोल्ड द देन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद कि ये मत, इस पे मत जाइए आप, बिकॉज वी स्टैंड द रिस्क ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म. तो जिस आदमी की सोच ऐसी हो कि जो इतने सेंचुरी से डिमोलिश किया गया, फिर बना, फिर डिमोलिश, फिर बना, और अब चांस मिला हमें हमारी हिंदू सिविलाइजेशन को की धरोहर को वापस उजागृत करना, तब आप कह रहे हो कि नहीं ये तो भाई बहुत गलत बात है, तो हिंदू रिवाइव हो जाएंगे, रिवाइवलिज्म आ जाएगा. तो इज इट एनी सरप्राइज कि वो बाबर की कब्र पे गए? वो बाबर जिसने क्या क्या कहा कि मैं गाजी बन गया, किलर ऑफ इन्फिडेल्स, मेरा काम था ये, जिसके अगेंस्ट गुरु नानक ने लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा हुआ, वो बाबर की मजार पे गए और राम जन्म स्थान पे नहीं गए. चलिए इलेक्शन पे आ जाते हैं. उतना बज़ दिखाई नहीं दे रहा है, खाली मुझे ही, आपको भी उतना बज़ नहीं दिख रहा. अब जब चीजें निश्चित होती हैं तो फिर तो क्या ये निश्चितता की वजह से बज़ नहीं हो रहा है कि सब लोगों को लग रहा है कि मोदी जीतेंगे, या फिर ऑपोजिशन उतना ट्राई नहीं कर रहा? क्या कारण? तो ये ऑपोजिशन क्या है मुझे ये समझ नहीं आया. डिफाइन ऑपोजिशन. यस, ये दे आर ऑपोजिशन. मैंने पहले ही एग्जांपल आपको दे दिए. इट इज नॉट वर्किंग इन नेशनल इंटरेस्ट. जो ऑपोजिशन कहे कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम है और उससे ही हजारों करोड़ रुपए ले, जो ऑपोजिशन कहे कि एफसीआरए का वायलेशन किया आपने और उसको अमेंड करे उसी एक्ट को कि आप वायलेशन से बचें,